नमस्कार। गूंज उठे मन की वीणा पर अभिनंदन के तार, गूंज उठी मन की वीणा पर अभिनंदन के तार और है श्रद्धा के पात्र आपका स्वागत बारंबार। मैं सोनाली शर्मा आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। On behalf of India International Center, I extend a warm welcome to our distinguished special guest to the launch program of Mr. Jamshed's book of haiku poems. May I now request our distinguished guest and today's panelists to please take their seats on the dais and grace the occasion. I would like to invite forward on stage Shri K.N. Srivastava, Director, India International Center. आप सभी से अनुरोध है जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। श्री koji Sato, डायरेक्टर जनरल, जापान फाउंडेशन। कामना प्रसाद जी अभी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगी और हमारी आज के मुख्य अतिथि जो हैं वो भी रामपुर से चल चुके हैं और कुछ ही देर में इस प्रेक्षागृह में आप सबके समक्ष होंगे। मैं बुलाना चाहूँगी वंदिता मिश्रा जी को, नेशनल एडिटर, इंडियन एक्सप्रेस। डॉक्टर श्री के श्रीनिवास रॉय, सेक्रेटरी, साहित्य अकेडमी। May I also request Honorable Manjula Das ji, Chairman CAT, to please join the guest at the dais. मंजुला दास जी वो भी कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। एंड पब्लिशर श्री राम गोपाल शर्मा जी, प्लीज टेक योर सीट। उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। एंड ऑफ कोर्स मिस्टर जमशेद, ऑथर एंड पोइट ऑफ हाइकू, हिंदुस्तानी लघु कविताएं, तो प्लीज जॉइन द डिग्निटरीज। It's all about your creation, Mr. जमशेद। तालियों की जो खनक है ना वो बहुत दूर तक जानी चाहिए, उसकी गूंज बरकरार रखनी चाहिए। स्वागत और इस्तकबाल की रस्में होती हैं और इसी सिलसिले में संस्कारों को निभाते हुए सभी अतिथियों का स्वागत मैं अनुरोध करूंगी राम गोपाल शर्मा जी से कि वह पुनादायी शॉल पहनाकर करें। Vandita Mishra, National Opinion Editor, Indian Express. Shri K.N. Srivastava, Director, India International Center. Dr. K. Srinivas Roy, Secretary, Sahitya Academy. क्योंकि कहते हैं ना, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मैं एक बार फिर माननीय अतिथिगण जो हमारे गणमान्य अतिथिगण हैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और वेलकम करती हूँ आपका अपनी तरफ और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तरफ से। और आपकी इजाज़त से सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी नबीला जमशेद को। शी इज़ एन ऑथर, पब्लिक स्पीकर एंड यूनाइटेड नेशंस स्पेशलिस्ट। Ms. Nabila Jamshed is requested to introduce haiku and briefly what this compilation of 1000 haikus is all about. Most of us are looking forward to the nuances of this art form. Ms. Nabila Jamshed, please. जोरदार तालियों से एक बार उनका हम स्वागत। To begin in the words of the author, वक्त कम, फुर्सते haiku मुख्तसर. And I will avoid reading any more of these because that's the prerogative of the author and our distinguished panelists here. So let me begin by joining this distinguished gathering in again warmly welcoming our distinguished guests, Mr. K.N. Srivastava, Mr. Srinivas Roy, Ms. Vandita Mishra, Mr. Koji Sato, and the author as well. To begin with, I'll confess that one of my roles in my daytime job is that of a speechwriter, and this is relevant to our discussion today because speech writing as an art form, and forgive me for calling it an art form, lives in the dramatic pause, quite in the same way that the poetic form of haiku lives in the dramatic pause. In that sense, the sense of the haiku being the beginning or opening of something is very much
a part of this ever since it was, it became its own art form in the 13th century. As I don't know if you all know what the history of haiku is, but back in the 13th century, the haiku was supposed to be the opening stanza of these epic centurion-long Japanese poems called the Renga. And the first opening paragraph was supposed to be the haiku. So in that sense, there has always been this sort of a space in the end, a sort of a sense of beginning, a feeling that a haiku, when it's a poem by itself, but it's so much more than that. When you hear it, there is a pause waiting in the end for you to add your own feeling, for you to add, something that you think is part of what it's trying to say. So in every tradition, it's interesting, in all our literatures of brevity, in our poetic history, whether it is the Mahakavya, whether it is Dohe, whether it's Psalms in the Bible, whether it's Shakespeare's sonnets, the entire very ordinary and everyday business of poetry and songwriting is usually told in two formats. The couplet, which is 2 lines, because the ear is very used to hearing that rhythm, and the quatrain, which is 4 lines, so you're used to hearing that rhythm of 4. But the haiku is something called the tercet, and it's so rare that you don't even know what the word, I think most of us are not even familiar with what the word tercet is. And therefore it has a very strict discipline and a very strict format. And the way that it works is that the first line is supposed to be 5 sounds, the second line is 7 sounds, and the third line is 5 sounds. And I say sound because there is a misconception that these are supposed to be syllables, but that, it's very interesting to me, totally depends on the language. So if you're talking in English, you have to say syllables, but since this volume of poetry is written in Hindi, it's letters, because in Hindi letters are, they are sounds. So the other important feature of a haiku is that there is a cutting line. The whole idea of this 3-line poem is the first 2 lines say something, and often the third one will completely overturn your expectations. And the thing that links the second line with the third is something called a kire or a kireji. And I'm sure Mr. Koji Sato is going to correct me on a lot of these things when he makes his address. So to give you an example of this, Bonto, famous haiku author of the 15th century, one of his haikus, it goes, I gaze at the moon, and every night is the night I had waited for. So, and it's not an exceptional thing. I know our ear is more used to hearing quatrains, but it's not an exceptional thing for a poem to be 3 lines, because a lot of poetry lives in these extracts. Dulce et decorum est pro patria mori kind of lives in that line alone. You don't need a quatrain to go with it. So the book that we have gathered here to launch brings this tercet to a uniquely Indian, a uniquely Hindi and Hindustani Urdu sensibility. And although there is a tradition of this in India, Rabindranath Tagore, the great Agyay have experimented with haiku and have written haiku extensively, there is by no means an extensive tradition of haiku writing in Hindi. And so this book is perhaps one of the only and perhaps the densest volumes of haiku in the Hindi vernacular. And I say vernacular because the words that have been used are not just Hindi. The haiku in the book is written in a language of conversation. So it borrows from Bhojpuri, from Braj, from Awadhi, from Urdu, and from English. But at the same time, no creative freedoms have been taken with the discipline of the haiku. And this extraordinary collection of 1,000 poems, each one of them is a 5/7/5 music and rhythm. The other way in which it departs from the tradition of the way that haiku was written is really expanding this ancient form of haiku into a great universe of quotidian, cultural, professional, intellectual themes, from migration and exile to moksha and nirvana, from pandemic to timeless questions of survival and existential risk, from Sufism to millennial nihilism, from sunsets to music, from relationships to art, to deprivation, to what it means to be human, to everyday life, work, play, and really the business of living. So the 20 chapters with 50 haiku each that you will find in this book range from such a diversity as Ulajhti Gintiyan, Sisyphus Chintan, Siyah Safedi, Mahamariyan, Mukti Bodh, Chiragi Tak, Piliya Sanj, Dilsa Musafir, Kali Coffee, Sufiana Jahan, just to name a few. That gives you a sense of what a diverse collection this is. And it's almost, the final point that I would like to make is the reason that the poet has chosen the form of haiku is definitely not at random, because
it would be a baffling choice otherwise. It's a difficult format to write poems in. Why would you want to say everything you want to say 1,000 times over in the strict discipline of 5-7-5? And the format itself is important because this terza, this sleight of hand that's required in the 5-7-5 music, the format that is almost a puzzle, is very much the dominant zeitgeist of our age. We live in a time that tries to capture world events as they happen in 140 characters or less. We live in a time of the Daily Wordle, the Daily New York Times Spelling Bee. We live in a time of the text message and WhatsApp messages. This brevity has taught us precision, and in haiku, in this sense, is really a poetic vessel for the future. So I'd like to conclude with one final haiku from the book before I hand over, and that is Bahar Kya हथेली में दुनिया सिमटी दिखी. Thank you. ब्यूटीफुली एक्सप्लेन. थैंक यू नबीला. जमशेद जी से इसके बारे में सुने. जाहिर है आपकी ढेर सारी ना सही मगर हम कुछ हाइकू तो ज़रूर सुनना चाहेंगे. बहुत ही एक अलीम और काबिल तरीन शख्सियत है जमशेद जी, जिन्हें जितना मैं सुनना चाहूँगी आप भी सुनना चाहेंगे. जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं. Ladies and gentlemen, please, Mr. जमशेद. डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट और मेरे तमाम दोस्तों जो न सिर्फ यहाँ आए हैं बल्कि आप वक्त पे यहाँ आ गए हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है. कामना जी मुझसे पूछ रही थी, खुद 10 मिनट लेट हैं, ये कह रही थी बहुत अच्छा किया आपने सही वक्त पे शुरू कर दिया. हाइकू, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग को ये लग रहा होगा कि हम यहाँ क्यों आए और ये क्या चीज़ है. क्योंकि एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था जब मैंने उनको बताया कि मैंने हाइकू लिखी है और 1000 लिख दी हैं, तो उन्होंने कहा कि हाई क्यों, इसको ये कहा जाए तो अच्छा है. तो हाई क्यों से एक दो लोगों ने ये भी पूछा कि हम गलत जगह आ गए हैं क्या. लेकिन जब आप आ गए हैं तो फिर आप बर्दाश्त कीजिए और यहाँ बैठिए और सुनिए कि ये विधा जो है ये किस तरह की विधा है और इसमें क्या कुछ समाया होता है. बल्कि मैं आज भी सुबह जब बात हो रही थी, कोजी सातो इज ऑल्सो हियर दैट दुनिया और दूसरी दिशा में बढ़ रही है. और अभी जो नया हमने सुना है वो ये है कि एक शब्द की वन वर्ड पोइट्री ये भी शुरू हो गई. अब वन वर्ड पोइट्री अभी तक तो समझ में नहीं आई, लेकिन इसके बारे में जानकारी हम और लेंगे. इट्स ओनली वन वर्ड एंड दैट्स अ पोएम. तो वो वन वर्ड वाला पोएम है और यहाँ तो हमने बहुत कुछ कहा है. इसमें 3 लाइनें हैं और 17 लेटर्स हैं. मैं इसी किताब में से पढ़ देता हूँ क्योंकि उसके अलावा कुछ हाइकू आपको सुनाने की कोशिश करूँगा. ये न तो नज़्म होती है और ना ये गज़ल होती है, तो इसमें उस तरह की तो बंदी भी नहीं है, उस तरह का शायद मज़ा भी नहीं है, लेकिन ये दूसरा एक फ्लेवर है. तो जो इसका प्रीफेस है उसी में लिखा गया है हाइकू में कहूँ तो, उसका टाइटल भी यही है. और ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैं आपसे वैसे भी कहना चाहता था. तो ख़ुद में जो आजकल हम लोग देख रहे हैं, ख़ुद में सिमटती और मुख्तसर होती हुई दुनिया में हम अपने तमाम रिश्तों, मुलाकातों, परेशानियों और खुशियों जैसे अनेक एहसासात को एक हद तक अब चंद लफ्ज़ों में समेटने के आदी हो चुके हैं. ये वो दुनिया है, ये वो वक्त है, ये वो माहौल है, ये वो मौसम है जहाँ शब्दों की सीमा है, वक्त की कमी है या शायद एहसासों की. एहतमाम या इत्मीनान से समझने या समझाने का सलीका भी शायद कुछ गुम सा गया है. देखा जाए तो अल्फाज की बंदिश कोई भी बात कहने को वैसे ज़रूरी नहीं होती. सोचें तो लगता है कि उम्र से लेकर मुलाकातों तक सब कुछ मुख्तसर सा ही तो है. सदियों से सुने जा रहे और बोले जा रहे नारे, कहावतें, जुमले, दोहे, ठुमरियाँ, मिसरे वगैरह वगैरह, ये सब बहुत ही लिमिटेड शब्दों में रहते थे. ये भी कहा जाता है कि प्रेम कहानियाँ, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पूरी की पूरी जीवनियाँ रसीदी टिकट के पीछे भी लिखी जा सकती हैं क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर होती है. हाइकू एक संवाद है, इससे डायलॉग एक माध्यम है गिनती के अक्षरों में अपनी बात कहने का. ये एक लघु कविता भी है क्योंकि इसका भाव काव्यात्मक है. अंतरंग संवाद, इसमें आप सारी चीज़ें डाल सकते हैं, जबकि ट्रेडिशनल हाइकू लिमिटेड रहती है सिर्फ नेचर के ऊपर. तो उसमें पेड़, फूल, झरने, नदियाँ, नेचर की हर तरह की खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो हाइकू से वाबस्ता होती हैं और हाइकू उसी ट्रेडिशन में लिखी भी जाती है.
लेकिन उस ट्रेडिशन को तोड़ के और बाहर निकल के हाइकू को लिखना, जिसमें कि आप संदेश, सवाल, खर्च होते हुए एहसास, जमा होते दुख, क्षणिक सुख, सदियों से चले आ रहे रिश्तों की गमक, मुक्तिबोध, मोक्ष, ये सारी चीज़ें और जो कुछ भी बचा है वो सिर्फ 17 अक्षरों में अगर आप लिख लें तो ये हाइकू होगी। और आप देख लीजिएगा कि, और निश्चित जानिए कि यहाँ से जाने के बाद मुझे यकीन है काफ़ी लोग इसको एफर्ट करेंगे और आपको लगेगा बहुत सक्सेसफुल हो गए। ये ज़िंदगी की बहुत सारी उन चीज़ों में से है जिसको लिखने में आप यकीनन तौर पर आप जो है सक्सेसफुल हो जाएंगे और बड़ी खुशी होगी आपको इस बात की। इस संकलन में 1000 हाइकू लिख डाली मैंने, और आम बोलचाल की हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि, जिसे हिंदुस्तानी भी हम लोग कहते हैं, उसमें कहीं कहीं ब्रज, भोजपुरी, अवधी, उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों को भी डाला गया है। बस उसी तरह जैसे बनारसी पान में कवाम टाइप कुछ खुशबू जैसा, और सब मिला के ढेर सी हाइकू लिखी हैं। पढ़ें तो शायद आपको वो मिल जाए जो आप कहना चाह रहे हो। रवायतन भी 2 शब्दों में ही जिंदगी की और 2.5 अक्षरों में इसके सबसे खूबसूरत पहलू की आप बीती कही जाती रही है। 17 अक्षरों की, 17 लेटर्स की हाइकू में तो महाकाव्य जैसा कुछ कहने की संभावना है। और अगर इन सारी चीज़ों के बारे में कि ये क्यों लिखा गया, अगर मैं हाइकू में ही कहूँ, और जब भी आप सुने मेरी हाइकू तो उसमें आप ये कोशिश कीजिएगा ये पकड़ने की कि ये पहले लाइन में 5 ही लेटर्स हैं, अक्षर, दूसरी में 7 और तीसरी में 5, बात कहने की बंदिश है। तो ये सारी चीज़ इसलिए है कि सहा सो कहा, सहा सो कहा, हाइकू सी जिंदगी, 5 और 7, सहा सो कहा, हाइकू सी जिंदगी, दिखा सो लिखा। ये एक हाइकू होगा। अब इस हाइकू में जितना भी कह दिया जाए, और जैसे कि चैप्टर्स हैं तो आप देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ज़िंदगी की, आम जिंदगी की, रोज़मर्रा की तमाम सारी चीज़ें और जो एरियाज हैं उन्हीं के बारे में है। सिसिफस चिंतन भी है, अल्बर्ट कामू वाला, और दिलसा मुसाफिर भी है, और भलम कलकत्ता भी है, खामखाम भी है, काली कॉफ़ी भी है, ये सब चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स में एक 20 चैप्टर्स हैं, इन चैप्टरों में 50-50 हाइकू हैं। और अब कुछ हाइकू इसी किताब की हैं। दूजे का दुख हमेशा से एक फिलॉसफी रही है अबाउट शेयरिंग द पेन एंड द ग्रीफ, एंड देयर हैज बीन लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग आल्सो, बट एक फलसफा ये भी एक दर्शन है कि दूजे का दुख, दूजे का दुख अपनाओ तो जानो, दूजे का दुख अपनाओ तो जानो तुमसे बड़ा, दूजे का दुख अपनाओ तो जानो तुमसे बड़ा। नहीं वो तालियां इसमें कहा क्योंकि दुखी नहीं है, बट दूसरा एक और चीज़ है कि मिसलीडिंग और बड़ा डिसेप्टिव का जो नैरेटिव है उसको अगर आप देखें, जो ट्रुथ के बारे में है, तो और फिर आप सोचेंगे तकिया सोचे, तकिया सोचे, खर्राटे ही निद्रा हैं, तकिया सोचे, खर्राटे ही निद्रा हैं, भ्रामक सच, ये वो भ्रामक सच है जिसमें आप अक्सर फंस जाते हैं। तकिया सोचे, खर्राटे ही निद्रा हैं, भ्रामक सच। बहुत सारे लोगों ने और अपने ज़माने में पतंगे भी उड़ाई होंगी, ये वो लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे जिन्होंने वो लटाई और मांझा आंझा खींचा है, ये सारी चीज़ें करी हैं। पतंगी दिन, ये आम तरह के दिनों की बात भी है कि पतंगी दिन, पतंगी क्यों है? ढील, खींच, पेंच में कटी गए, सारे दिन भी पतंगी थे, ढील, खींच, पेंच में कटी गए। तो देखें कि सर्टेन फैक्ट्स जो कि सिर्फ माओ को मालूम होते हैं, और मेरे ख्याल से वैसे भी मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि जितनी ज़्यादा सेंसिटिव महिलाएं होती हैं, जितनी ज़्यादा सोच उनकी होती है और जितनी मैच्योर सोच होती है, उसके मुकाबले में मर्द तो कहीं आते ही नहीं है, मतलब दे अपीयर वेरी फूलिश। लेकिन कुछ चीज़ों में जो सेंसिटिविटी है वो ये है कि दुख या सुख, हर लाइन में ये है कि आप इसके बारे में एक सवाल किया जा रहा है, दुख या सुख, इसकी डेफिनेशन भी आप खुद ही ढूंढिए। दुख या सुख, बिटिया ससुराल, 5 और 7, दुख या सुख, बिटिया ससुराल, बस माँ जाने, दुख या सुख, बिटिया ससुराल, बस माँ जाने। एक प्लेजर्स की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं कि अल्टीमेट प्लेजर क्या हो सकता है।
तो अल्टीमेट प्लेजर कोई एक चीज़ नहीं है, दो चीज़ नहीं है, आप गिनवा नहीं सकते हैं। ये हर शख्स का, हर इंसान का, हर बच्चे का, हर एक का एक अलग प्लेजर होता है। तो वो एक जो चरम सुख जिसको कहते हैं, तो वो क्या चीज़ है अल्टीमेट प्लेजर? बाल काढ़े माँ, बाल काढ़े माँ कहानी भी सुनाए, बाल काढ़े माँ कहानी भी सुनाए, चरम सुख। किसी के लिए ये भी चरम सुख। एक मुझे भी पसंद है, और आप लोग हम लोग जिस तबके से आते हैं, सारे के सारे जिस गोत्र के लोग हैं, वो सब रिटायर होते हैं, सर्विसेज में है, मकान बनवाते हैं, ये सब सोचते हैं। तो उसके बारे में है कि बाकी मकान हैं, रेस्ट ऑल ऑफ देम द हाउसेस, बाकी मकान हैं, घर जहां दिल हो वहीं टिकना। बाकी मकान हैं, घर जहां दिल हो वहीं टिकना। Heart is where the home is. चिड़िया चिड़ा, चिड़िया चिड़ा, दाल चावल साथ। एक बहुत सिंपल सी लिविंग ये भी है। चिड़िया चिड़ा, दाल चावल साथ, लिव इन सा। चिड़िया चिड़ा, दाल चावल साथ, लिव इन सा। ये नौजवानों की तरफ है कि ताज ठहरो, ये भी एक बात कही जा रही है। किसी मित्र से आप कह रहे हैं ताज ठहरो, शरद पूर्णिमा है, टिकट ले लूं, ताज ठहरो। हम बात करते हैं एम्पावरमेंट की, अनशैकलिंग की, बॉन्डेजेस की, बच्चियों की, बच्चियों की। बेड़ियां काटो जरा, अनशैकल देम, द गर्ल चाइल्ड। बच्चियों की बेड़ियां काटो जरा, परवाज दो, लेट देम फ्लाई। और ये जो बेड़ियां हैं, ये इस बात का भी ध्यान रखिए कि ये लोहे की ही नहीं होती हैं, ये बेड़ियां कपड़े की भी हो सकती हैं। दरिया दिली, 5 लेटर्स, दरिया दिली, सौदागरों के बीच। अक्सर आप देखते होंगे कि इनमें आपस में कैसे जान पहचान होंगे। दरिया दिली, सौदागरों के बीच, पुरानी रीत, ये हमेशा से चलिए। About the governance and the models, and as we are all aware that the biggest divide anywhere over centuries has always been between haves and the have-nots. लक्ष्य ये भी पाठ देना खाइयां, पाठ देना खाइयां गरीबी तक। लक्ष्य ये भी पाठ देना खाइयां गरीबी तक। एक नजरिया दूसरा है, और जो कई खेल होते हैं और उनमें खेले जाते हैं, और खासतौर से उसमें शतरंज एक ऐसा खेल है जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा भी गया है। चले जाते हैं, चले जाते हैं शतरंजी मोहरे। अब ये कौन है शतरंजी मोहरे? चले जाते हैं शतरंजी मोहरे या छले जाते हैं। उनके साथ खेलते तो हम लोग जरूर हैं, उन कहते हैं कि चाल है, ये चल रहे हैं, लेकिन छले वो जा रहे हैं। एक फलसफा के प्रेम से, ये कुछ प्रवचन के मोड में है कि प्रेम से सिद्धि, सेवा देती स्वर्ग, क्षमा ही मोक्ष, क्षमा ही मोक्ष। हमारे एक मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, काशी से आए काफी साल के बाद, लेकिन कह रहे हैं मोक्ष नहीं पा पाए तो वापस लौट गए। लाइफ गिवर, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच कुड हैव डिफरेंट मीनिंग्स। सूरज से जिंदगी मिलती है, और हम सब जानते हैं कि सूरज ना हो तो जिंदगी नहीं होगी। लेकिन सूरज, और ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती हैं, लेकिन उसमें भी देखिए कि कहीं पे कुछ ऐसा है कि ये ओस बूंदें, ड्यू ड्रॉप्स, ये ओस बूंदें क्यों हैं विचलित? Why are they so disturbed? ये ओस बूंदें क्यों हैं विचलित? सूर्य या यम? ये मौत है या जिंदगी है? सूरज, सूरज के निकलने के बाद आप जानते हैं।
आजकल बहुत है, उसके ऊपर भी धुआं से भी हम लोग। अच्छे कटे बेखबरी से दिन बिना नेट के। एक चीज और है कि ये अनऑर्थोडॉक्स, उसी से निभे, और ये है कि ये सच भी है, उसी से निभे प्रेम जो दे बेशर्त, अनकंडीशनल, उसी से निभे प्रेम जो दे बेशर्त, हमेशा वाला, हमेशा वाला। एक चीज और कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको याद हैं और आप कहते हैं कि ऐसा हुआ था, लेकिन वो अनकही थी, वो आपसे कभी किसी ने कहा नहीं था, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा कहा था। अनकही वो सारी बातें याद हैं, अनकही वो सारी बातें याद हैं, फिर भी सुना। अनकही वो सारी बातें याद हैं, फिर भी सुना। जिंदगी का फलसफा सूफियाना अंदाज में कि मौत ही सच, मौत ही सच, जिंदगी मांगे दुआ, जीते रहिए। मौत ही सच, जिंदगी मांगे दुआ, जीते रहिए। एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो एक लिमिट होती है, तो फिर एक रियलाइजेशन भी होता है। कभी खुद भी, 5 और 7 पकड़े रहिए, अच्छा लगेगा। कभी खुद भी गरेबा में झांकना, कभी खुद भी गरेबा में झांकना, चौंक जाओ, चौंक जाओ। दूसरी चीज ये कहा जाता है कि हाथ बदल गए और वक्त बदल गया है, नए जमाने हैं। किसने कहा, किसने कहा वक्त कब बदले, किसने कहा वक्त कब बदले? हम तो वही, तो बदलते आप हैं, वक्त नहीं बदलता। एक इनकलाब की बातें बहुत जमाने पहले हुआ करती थी, वो शायद अब वो रेलेवेंस उनकी नहीं रह गई। तो रेलेवेंस अगर नहीं रह गई है तो इस तरह की चीज के साथ में क्या किया जाना चाहिए? उतार फेंक, उतार फेंक इनकलाबी जुआ। ये जो बोझा है, एक फिलॉसफी है और एक थ्योरीज हैं। उतार फेंक इनकलाबी जुआ, कल बदल, कल बदल। दूसरी चीज अक्सर करके देख लीजिए और आपको यकीन हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जिंदगी में। पॉसिबिलिटीज बहुत लिमिटेड है, उम्र में भी और जिंदगी में भी। दांव लगाओ, दांव लगाओ, मुमकिन है बस, मुमकिन है बस चित या पट, एक ही चीज होनी। अक्सर ये भी होता है कि, और ये बहुत सारे लोग रियलाइज भी करते हैं अक्सर, वो मौके भी आते हैं जब ऐसी जगह जाना पड़ता है जहां हम जाना नहीं चाहते हैं। क्षणिक सब, एवरीथिंग इज मोमेंटरी। क्षणिक सब, शमशान बुद्धि, व्यर्थ चिंता। शमशान बुद्धि कहलाती है, लौट के आते हैं लेकिन बहुत क्षणिक रह जाती है, उसके बाद फिर वापस रोजमर्रा की जिंदगी में। क्यों लिखे थे, क्यों लिखे थे नाम यूं ही रेत पे, क्यों लिखे थे नाम यूं ही रेत पे, मिटने तो थे, मिटने तो थे। पराए दुख, ये एक शेयरिंग के बारे में बड़ा मैं स्ट्रांगली फील करता हूँ। पीर पराई की बात जो होती है, पीड़ा लोगों के दुख। पराए दुख, अपना लो तो जानो, बहुत सिंपल है। पराए दुख अपना लो तो जानो, यही है सुख, यही है सुख। तलाश के बारे में जो क्वेस्ट होती है, दिस इज एन अनएंडिंग क्वेस्ट ऑफ द ह्यूमन रेस, ह्यूमन बीइंग्स। ये सदियों से चली आ रही है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक देयर वाज अ क्वेस्ट फॉर नॉलेज एंड क्वेस्ट फॉर ट्रूथ. दिस क्वेस्ट गोज ऑन. I mean, for that, the Moses has also gone on to Mount Sinai. And फिराक कैसी, फिराक इस तलाश, इस सर्च, इस क्वेस्ट. फिराक कैसी, खुद को ढूंढो बस. फिराक कैसी, खुद को ढूंढो बस, तुझ में सब, तुझ में सब. खुद को ढूंढो बस, तुझ में सब. एक वेरी ऑफन वी हियर अबाउट थिंग्स हैपनिंग के बच्चों का स्कूल हो गया, ये सारी चीजें हो गई, तो वहां क्या फीलिंग होती होगी लोगों की. ये
सवाल है बहुत बुनियादी, ऊपर के लिए किया गया है। दुआ सुनेगा, दुआ सुनेगा या सुनाता रहेगा? दुआ सुनेगा या सुनाता रहेगा? छोड़ देंगे हाँ। एट सर्टेन लेवल आपको शायद ये कहना हो जाए कि वी आर ओके, आई डोंट बॉदर अबाउट अस। एक हाइकू है जो अदालती लोग यहाँ बहुत हैं, मेरे सहयोगी भी हैं, जजेस भी हैं, तो एक बड़ा नुआंस छोटा सा डिफरेंस है और वो अक्सर भुला दिया जाता है, वैसे बहुत लोग जानते भी हैं उसको। इंतजार में फैसले तो मिलते, इंतजार में फैसले तो मिलते, इंसाफ भी हो। ये फैसले और इंसाफ के बीच का जो डिफरेंस है, फैसले तो डिस्पोजल और ऑर्डर तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जस्टिस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जब ये पैंडेमिक का ज़माना आया था, जो मैंने कहा था कि बहुत कुछ हुआ, तब ये भी ख्याल आने लगा था कि खुमार छोड़ो, खुमार छोड़ो, दुआ है बस अब बुखार टूटे। अब 20-20 दिन हो जाते थे और इसी में इसी बीमारी ने एक चीज़ और बताई कि जात न धर्म, महामारी सर्वत्र, निरपेक्षता। ये दुनिया के हर कोने में और हर मजहब में और हर जगह पे हुई। उसी पीरियड में और एक बुनियादी सवाल ये आया कि नर्स या प्रभु, नर्स या प्रभु, इसके साथ में एक और चीज जुड़ गई थी, मशीनें। नर्स या प्रभु, सांस आखिर मिली वेंटिलेटरी। नर्स या प्रभु, सांस आखिर मिली वेंटिलेटरी। दिल्ली में काफ़ी अर्सा हो गया रहते हुए, 2 दशकों से रह रहे हैं, और हर दफ़ा ये कहा जाता है कि जब पॉल्यूशन बढ़ता है, और अब तो खैर वो बात भी, पैंडेमिक आ गया तो पॉल्यूशन भुला दिया गया, लेकिन जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो ये कहा जाता है कि हर साल ये बात आती है कि 10 साल आपकी उम्र कम हो गई, इतना ज़बरदस्त पॉल्यूशन है, और फिर भी रह रहे हैं, जिए जा रहे हैं। तो वो फैला धुआंसा, धुआंसा इज स्मॉग, धुआं और कोहरा सारी चीज़ें मिला के जो सर्दियों में बहुत होता है, फैला धुआंसा। कुछ लोग इससे कनेक्ट होंगे। लत लगी सांस को, सांस जो ब्रेथ है, इट इज बिकमिंग एडिक्टेड। लत लगी सांस को चरसा गई। फैला धुआंसा, लत लगी सांस को चरसा गई। वो जो फ़ोन की दुनिया है सिमटी हुई, उसमें अब इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल होने लगा है कि वो भी जितना कहा जाए उतना कम है, कि 3 लफ्ज़ तलाक जैसे लगे, 3 लफ्ज़ तलाक जैसे लगे, लेफ्ट द ग्रुप। अब दूसरा एक डिफरेंस है योजना और नीति का। योजना कैसी, योजना कैसी, कब है सर? मिलन तो तय है। कब है? योजना कैसी, मिलन तो तय है, नीति बनाओ। कितने बजे? There's a very old saying क्या है वो, is also mentioned in the book of Genesis and everywhere that और मजाक भी किया जाता है अक्सर, एडम एंड ईव मीटिंग में हूँ, भी फोन कर जब थे वहाँ पे, सिर्फ तुम हो, बंटी को भेजता हूँ, सिर्फ तुम हो, अंज आकाश, पसलियां गिन लो, सिर्फ तुम हो, पसलियां गिन लो, सौतन नहीं। क्योंकि एक बार जब वो सो के जागे थे एडम, तो उन्होंने देखा था ईव उनकी पसलियां गिन रही थी कि इसमें से एक और तो निकाल के नहीं बनाई थी गॉड ने कहीं। कॉलेज स्ट्रीट पे चले जाएं नौजवान तो कड़वी मीठी, कड़वी मीठी, इस तरह के भी कुछ हाइकूज हैं इसमें। कड़वी मीठी बस तुमसे थी, कड़वी मीठी बस तुमसे थी काली कॉफी। जाने कब से बाल स्याह किए इंतजारियां, बहुत सारे लोग बहुत मुद्दतों तक इंतजार करते रहते हैं। फिर वापस खाली हाथों क्षितिज प्रवासी दिन, दोज डेज। वो भी है प्रेम। इट इज नॉट ऑल अबाउट
Provence and south of France and roaming around exotic places. वो भी है प्रेम मरीन ड्राइव वाला, बम्बई वाले हैं उनको मरीन ड्राइव समझ में आएगा। वो भी है प्रेम मरीन ड्राइव वाला भुने चने सा। और आखिर में कि जो इसको इस किताब का डेडिकेशन है वो भी किताब को डेडिकेट किया गया है समझौतों पे सुबह शाम करते और इसी अर्थहीनता में इन द सेम मीनिंगलेसनेस सुख ढूंढते सिसिफस के नाम। सिसिफस की फिलॉसफी है, बाद में अल्बर्ट कामू ने भी उसके बारे में लिखा था कि सिसिफस थे जो एक बड़ी गोल सी चट्टान भारी सी उनको दे दी गई थी और रोज़ उनको पहाड़ के ऊपर ले जाना होता था। ऊपर ले जाते थे, चट्टान फिर वापस आ जाती थी। दूसरे दिन फिर सुबह तैयार होते थे, फिर वो चट्टान ढकेलते थे। ही वाज पनिश फॉर दैट। यही चीज़ जो है ये चोर्स भी हैं हमारी, ये डे टू डे ज़िंदगी भी है। और ऐसा कहा जाता है कि एवरीथिंग इज़ मीनिंगलेस। तो ये अर्थहीनता जो है ये एक अलग है, लेकिन हम लोग भी कुछ उसी तरह से हैं कि मैंने इस अर्थहीनता को अलग ढंग से कहा है सिसिफस के अलावा कि उधेड़ें बुने सिसिफस हम भी कामू दर्शन है। अस्तित्ववाद और यथार्थ भी उसके बारे में भी लिखा गया है। सिसिफस हो रोज़ ढकेलो तन फिर भी खुश, क्योंकि कहा गया था कि आपको फिर भी खुश रहना चाहिए। और एक इमेज भी आप हाइकू में कैप्चर कर सकते हैं। जब आप एक इमेज है कि एक छोटे से कस्बे के अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में एक प्रेग्नेंट महिला हैं, हताशा लेटी डॉक्टर से पूछे बेटा या बेटी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का बर्दाश्त करने के लिए और यहाँ आने के लिए। मैं खुद भी सुनना चाहता हूँ आप सब लोगों को, लेकिन क्योंकि किताब को पढ़ना ज़रूरी था इसलिए मैंने ये फ़र्ज़ निभाया है। बहुत शुक्रिया। मैं कश्मकश में हूँ कि अल्फाज कहाँ से लाऊं। आज के ज़माने में फ़लसफ़ा वही सराहा जाता है जो गागर में सागर बन सके। आपने ज़िंदगी से जुड़ी सच्चाइयाँ और हकीकतों को कम लफ्ज़ों में इतना बखूबी निभाया है कि आप काबिल तारीफ़ हैं और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे बीच में कामना जी भी पधार चुके हैं, थोड़े लेट हुए, उनका हम स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में मंजुला दास जी चेयरमैन कैट, वो भी पधार चुके हैं, आपका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। और मैं राम गोपाल शर्मा जी से अनुरोध करूंगी उनको आप दोनों को पुनदायी शॉल देकर स्वागत की। सुनिए, मुख्तसर ही सही। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगी कामना प्रसाद जी से, जो कि एक साहित्यकार हैं और लिखने के अलावा जश्न बहार कार्यक्रम का आयोजन आपके दिशा निर्देश में होता है। उर्दू अदब की सशक्त हस्ताक्षर, जिनका मानना है कि जब तक दुनिया में इश्क है तब तक उर्दू कायम रहेगी। इश्क तो इसी जुबान में होगा। तो बुलाना चाहते हैं कामना जी को। मिस्टर कोजी सातो, डायरेक्टर जनरल जापान फाउंडेशन, जनाब के.एन. श्रीवास्तव, डायरेक्टर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जनाब श्रीनिवास राव, सेक्रेटरी साहित्य एकेडमी, मंजुला दास साहिबा और मोहतरमा वंदिता मिश्रा जी, द ऑथर, द ब्राइडग्रूम ऑफ टुडे जमशेद साहब, एंड वो नबीला, वो व्हाट अ ब्राइट चाइल्ड। तो और बढ़ता है ज़बानों का नशा जब नई सिन्फ, और बढ़ता है ज़बानों का नशा जब नई सिन्फ सुखन मिलती है। और जब ये नशा हद से गुजर जाए तो अपने फ़िक्र फन से शायर जमशेद एक पूरा दीवान लिख देते हैं और हाइकू हिंदुस्तानी लघु कविताएं की तख्लीक होती है। आपने कहा जिंदगी मुख्तसर है, फूल की उम्र कम हो तो हो, फूल में जिंदगी कम नहीं, उम्र मुख्तसर है जी। दुनिया की किसी भी ज़बान में
दूसरी ज़बानों की असनाफ शेरो अदब शामिल होती रहती हैं और यह अमल किसी भी ज़बान के दामन के वसीतर होने और उसके हुस्न में इजाफे का सबब बन जाता है। हुस्न बढ़ता है ज़बानें जब ज़बानों से मिलें। हिंदुस्तानी ज़बानों में भी कई गैर मुल्की असनाफ दाखिल हुई हैं, जिनमें हाइकू ने बड़ी तेज़ी से मकबूलियत हासिल कर ली है। आजकल हिंदुस्तानी शुअरा कसरत से इसे फ़रोग दे रहे हैं। दोस्तों, इस किताब के लिए कुछ कहने से पहले आप सब की याद दहानी के लिए शायरी की इस विधा पर, इसकी तारीख पर नजरे सानी किए लेते हैं। सिन्फ़े हाइकू का सहरा 17वीं सदी के अजीम जापानी शायर और फलसफी मात्सुओ बाशो के सर जाता है। बाशो का तर्जुमा दुनिया की बेशतर ज़बानों में हो चुका है और सिर्फ उर्दू की बात करें तो कहते हैं, बाशो कहते हैं, पुराना तालाब मेढक की जस्त से पानी की आवाज, एन ओल्ड पॉन्ड अ फ्रॉग जम्प्स इन द साउंड ऑफ वाटर। हाइकू में 3 सत्रों में बात कही जाती है और एक हाइकू में 17 सिलेबल्स का इस्तेमाल होता है। पहली लाइन में 5, जैसा कि आप जमशेद साहब बता चुके हैं। पहली लाइन में 5, दूसरी में 7 और तीसरी में फिर 5। हाइकू में फितरी मज़ाहिर की ज़बान में बात की जाती है। इसमें शायर का जहन कुदरत के साथ हमेशा हम आहंग रहता है। संस्कृत का लफ्ज़ ध्यान, आप सबको ध्यान होगा, संस्कृत का लफ्ज़ ध्यान के पैहम अमल से इरफान हासिल होता है। लफ्ज़ ध्यान बौद्ध भिक्षुओं के साथ चीन और जापान पहुंचकर चान और फिर समय काल में ज़ेन बन जाता है। तो यही ज़ेन हाइकू की रूह है। 19वीं सदी में हाइकू को पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल होने लगी थी। शुरू में नीदरलैंड, फ्रांस, अमेरिका और एज़रा पाउंड की इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो शुरुआती दौर की इंग्लिश हाइकू मानी जाती है और अब तो दुनिया की हर ज़बान में हाइकू लिखी जा रही है। हिंदुस्तान की बात करें तो नोबेल लॉरिएट गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर अपनी जापान यात्रा तक, गालिबन वो 1916 था, के दौरान हाइकू से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने अपनी किताब जापान यात्री में तफसील से इसका जिक्र किया है और बंगला में हाइकू के कुछ तर्जुमे और तजुर्बे भी किए हैं। मशहूर तमिल कवि सुब्रमण्य भारती ने हाइकू को तमिल साहित्य से रूशनास कराया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय ने भी हाइकू को संजीदगी से बरता है। माजी करीब में प्रोफेसर सत्यभूषण वर्मा को मासाओका शोकी इंटरनेशनल हाइकू अवार्ड से नवाजा गया और आज आपके सामने जमशेद जी की हाइकू लघु कविताएं इसी सिलसिले की एक कड़ी है। दुनिया में हाइकू की मकबूलियत की खास वजह ये भी है कि छोटी सी बहर में मुख्तसर से अल्फाज में पूरी कायनात का राज बयान किया जा सकता है। वो एक इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट की तरह उभर के आ जाता है, इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग की तरह, जिसमें कुदरत का करिश्मा, फितरत की रंगीनियाँ भी होती हैं और ज़िंदगी का फलसफा और अध्यात्म की चाशनी भी होती है। गोया शायर इस सिंफ के जरिए कूजे में दरिया समो देता है और फिर बिहारी के दोहों की तरह देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर। इस दौर की तरक्की में और मादियत परस्ती और आपाधापी की जिंदगी में
इंसान के पास इतना वक्त या सब्र कहाँ कि वो तवील कसीदे पढ़े, मसनवियाँ पढ़े, महाकाव्य पढ़े या दीवान पढ़ सके। जनाब जमशेद साहब की इस किताब को पूरा पढ़ने का मौका अभी नहीं मिला है, लेकिन हम जितना पढ़ सके उससे ज़हनो दिल बेहद मुतासिर हुआ। ग्रीक माइथोलॉजी के सिसिफस की जद्दोजहद हमारे अहद के हर इंसान की जद्दोजहद है। द स्ट्रगल ऑफ सिसिफस फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवरी पर्सन स्ट्रगल इन द मॉडर्न वर्ल्ड, and Jamshed juxtaposes this perfectly in haiku. भारी शिला है रोज वापस वहीं अस्तित्व। रोजमर्रा की शहरी जिंदगी में सरे राह जब गाड़ी सिग्नल्स पे रुकती है तो हम सब देखते हैं, लेकिन जब शायर देखता है तो हाइकू से एक बेबस लाचार माँ की तस्वीर बना डालता है। कहता है, भूख बड़ी थी, लाल गुदड़ी में था, बत्ती हरी थी। जमशेद मुहावरों का इस्तेमाल भी हाइकू में बखूबी करते हैं। ना आगे नाथ, ना ही पीछे पगहा, फिर भी चिंता। तो अंधविश्वास और दकियानूसी सोच की वजह से बच्चियों की आज़ादी पर पाबंदी के खिलाफ जब जमशेद साहब कलम को जुम्बिश देते हैं तो नसीहत भी करते हैं और तंबीह भी। बच्चियों की बेड़ियां काटो जरा, परवाज दो। आए दिन मुल्क या यूं कहें कि दुनिया भर में फसादात हो रहे हैं, जिनका हासिल सिर्फ नफरत, आग, धुआं और बर्बादी है। उसे भी जमशेद साहब खुशउस्लूबी से बयान करते हैं। आई कोट, किसका घर जल भी चुका कल, फसाद कहाँ। हाल की महामारी ने पूरी दुनिया में तबाही और बर्बादी का इतिहास ही रच डाला। ये भी सच है कि महामारी किसी भी धर्म को नहीं बख्शती। जैसा कि आपने अभी फरमाया, तो महामारी की धर्म निरपेक्षता पर क्या अच्छी बात लिखी उन्होंने। जात न धर्म, महामारी सर्वत्र, निरपेक्षता। जमशेद आजकल की नस्ल नौ की जदीद इश्क की, रिलेशनशिप ऑफ कन्वीनियंस की, कैसे दिलचस्प तर्जुमानी करते हैं। नेट पे मिले, नेट पे ही बिछड़े, दर्द न गिला। वक्त नहीं है ना, वो किसी और को तब तक कहेंगे कि वो दूसरा ढूंढेंगे। Shakespeare's poetry is traditional and modern at the same time. His references are Indian, but his vision is global. किताब तो अपने कवर से ही पहचान ली जाती है और इस किताब का कवर भी हाइकू के मिजाज के ऐन मुताबिक है। हाइकू की इस नायाब जिल्द कवर के लिए फरहत जमशेद को और इसके इशाअत के लिए हम आलोक पर्व प्रकाशन को मुबारकबाद पेश करते हैं। और हम शायर जमशेद को हाइकू का मुकम्मल हक अदा करने के लिए, मानी खेज मंजर कशी के लिए और इस दीदा ज़ेब किताब के लिए, हाइकू हिंदुस्तानी लघु कविताएं के लिए दिली मुबारकबाद देते हैं। हमारा यकीन है कि ये अदबी हलकों के साथ साथ अवामी सतह पर भी मकबूल होगी। और आखिर में इस किताब से हर हिंदुस्तानी के लिए एक पैगाम, तरक्की की मशालें कह रही हैं, सब साथ हों। शुक्रिया।
धन्यवाद, बहुत खूबसूरती से आपने अपने मन के उद्गार रखे। के.एन. श्रीवास्तव जी, डायरेक्टर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जिम्मेदार हैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की सांस्कृतिक गतिविधियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने के लिए ये आयोजन भी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तरफ से किया जा रहा है। मैं बुलाना चाहूँगी के.एन. श्रीवास्तव जी से। I am particularly very happy to see this program and be a part of this program for the simple reason that for the past 2 years at IISc, we were completely devoid of these physical programs. Just to give an insight, we conduct 4,000 programs in a year, out of which 1,000 is organized by IISc itself, and this program is part of a part of IISc programs, and 3,000 programs are organized by private people. During this 2 years of difficult pandemic period, all the physical programs had come to a grinding halt and we switched over to the virtual mode. But I'm very happy that all those programs are back. And this year is particularly very important for us because this is our Diamond Jubilee year. Precisely on the 22nd of January 1962, IISc was founded. And it has got an umbilical link with Japan because it has been patterned on the lines of International Office of Japan. So we have started several programs as a part of Diamond Jubilee celebrations. You might have read or might have also participated in the program, inaugural program which Honorable President of India came and inaugurated. And we'll be having several programs throughout this year as a part of our Diamond Jubilee celebration. Now coming to this particular program, I am really amazed and I am highly admirable to the literary skill of Jamsetji. As we all know, he has been a very distinguished civil servant, reached the highest position of Secretary to Government, Member Traffic Railway Board, and thereafter now a judge in the Central Administrative Tribunal, which organization I also had the privilege to serve. I am really amazed for the reason that besides all his judicial and administrative responsibilities, he has still been able to take out time for literary work. And today's, this haiku, how he explained and how he enthralled us with all the details is something which has become really memorable for each one of us. I would say that I am a person not from the field of literature, so I am feeling a little alien. My condition is something like a short story which I read. मैं इसको हिंदी में कहता हूँ। ये राजा भोज का पीरियड था जो उन्होंने उसमें साहित्य को बहुत प्रोत्साहित करते थे। यदि किसी ने कोई अच्छी कविता लिखी, कोई अच्छा श्लोक लिखा तो उसको पुरस्कृत करते थे। उन दिनों शायद जमशेद साहब होते तो इनको बड़े सारे पुरस्कार मिल जाते। बिल्कुल। तो वो प्रसंग ये है कि जब बड़े सारे लोगों को पुरस्कार दे रहे थे, सोने के मोहरे मिलते थे, तो गांव में कुछ लड़के थे हमारे जैसे जिनको कि साहित्य के विषय में कुछ ज्ञान नहीं था, का पता नहीं था, इसलिए कुछ लिख नहीं पाए। तो सुबह के बैठे बैठे दोपहर आया, इसके बाद भूख लग गई तो एक ने उस पर लिखा, भोजनम देहि राजेंद्र, हे राजा भूख लगी भोजन दो। इसमें कोई साहित्य नहीं है बस, लेकिन उसने अपनी मन की जो व्यथा थी उसको उसने व्याख्यान किया। तो दूसरे ने फिर दूसरी लाइन लिखी, तो उसने कहा कि भाई जब मांग ही रहे हो तो ठीक से खाना मांगो। दूसरी लाइन उसने लिखी, घी तो सूप समन्वितम, घी और दाल के साथ लो यार, सिंपल खाना से क्या होगा। तो ये 2 लाइन लिखने के बाद बाकी 2 लाइन उनके पास समझ नहीं, करते करते शाम हो गई। फिर उन्होंने आउट ऑफ डिस्कशन किया अब क्या करें, लेकिन सडनली देखा कि कालिदास जा रहे थे, तो चारों ने जाकर उनका पैर पकड़ा, बोले कि महाराज हमारी एक कठिनाई है, ये 2 लाइन बड़े मुश्किल से लिखे, इसमें साहित्य तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि बाकी 2 लाइन आप लिख दें तो शायद हम लोगों का कुछ कल्याण हो जाए। तो कालिदास ने लिखा, पहली 2 लाइन थी, भोजनम देहि राजेंद्र, घी तो सूप समन्वितम। कालिदास लिखते हैं, महिषम स शरद चंद्रा चंद्रिका धवलम दधी, मीनिंग इज दैट साथ में दही दो और दही ऐसी हो जो शरद चंद्र की पूर्णिमा की जैसी सफेदी वाली दही हो।
तो ये श्लोक बना करके जब वो राजा भोज के पास लेके गए तो राजा भोज तो खुद ही साहित्यकार थे, उन्होंने पढ़ा और इनको पुरस्कार दिया और उनसे पूछा कि पुरस्कार तो तुमको हमने दे दिया है, ये लास्ट की 2 लाइनें किसने लिखी है? तो आज इस मौके पे मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ जमशेद साहब को। एक्चुअली मैं आने से पहले ही चाय के उसके मैं कह रहा था कि ये जमशेद परिवार ही पूरा एक आर्टिस्ट का, साहित्यकारों का परिवार है। Mrs. Jamshed ki several of our artworks we have displayed here, and we are looking forward for more exhibition of our artworks at IIC. Nabila, so talented, child. Without taking into account that she is daughter of our dear friend Jamshed, when we called her for interaction when she applied for IIC membership, simply by seeing her talent, we said that she is the most appropriate person to be member of our center. Jamshed ji and entire family and all the dignitaries who have taken out time for this program, thank you very much. Thanks a lot. Today has traveled across countries and continents from its origin country and language, and that's Japanese. It is being written and translated in all languages now. Mr. Koji Sato heads the Japan Cultural Center and therefore the right person to talk about Mr. Jamshed's haiku. He also speaks very good Hindi. So Mr. Koji Sato, please address us. प्रिय दोस्त, नमस्कार। मैं इस अवसर में आमंत्रित होकर बहुत बहुत खुशी हुई। मैं तो सिर्फ एक जापानी आदमी हूँ, अधिकारी हूँ, तो इस वक्त यहाँ पे शायद इस डिग्निटरी के शब्दों के ऊपर कुछ दो तीन शब्द करने की अधिकारी नहीं है, तो सिर्फ बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए मैं आया हूँ। क्योंकि पूरा का पूरा हाइकू के बारे में वो नबीला जी या हमना जी बता चुका है तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ ये बहुत बहुत खुशी की बात है। ये हाइकू जो आज से 400-500 पहले जापान में पैदा हुआ था, अब वो दुनिया के वो कॉमन्स हो चुके हैं, और ये तो बहुत बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ पर वो जमशेद जी के वो हाइकू को पढ़ाने के वो मतलब मौका को हम शेयर किया था, और उसमें काफ़ी पीसफुल मोमेंट हमने शेयर किया था। मैं तो वो लगभग 20 साल पहले यहाँ दिल्ली में आकर काम किया था, और उसी वक्त से ये परंपरा, भारतीय परंपरा, वो जैसे कम्युनिटी और इकट्ठे करके शेर या कविताओं को पढ़ के और इस मोमेंट को काफ़ी पीसफुली मनाते हैं। तो आज ये मौका हाइकू के रूप में देख लिया, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। तो इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और ये बच्चों के वो मेंढक की बात भी वो कान्हा जी बहुत अच्छी तरह से बता चुका है। तो लेकिन ये बहुत बहुत सुंदर कविता है, वो 5-7-5 का, वो जापानी भाषा में अगर मैं पढ़ने का अनुमति मिलेगा तो वो फुरुइकेया is old pond, kawazu tobikomu. Kawazu is mendak, tobikomu is jumps in, and mizu no oto is the sound of the splash of water. So जैसे नबीला जी या जमशेद जी ने कहा, वो ओरिजिनली वो हाइकू
was made maybe in relation to the nature, maybe capture the very moment of beauty and make it kind of a eternal. So that is the power of haiku, I believe. But maybe now this haiku has become very global, and Jamshedji is also trying to make it maybe more advanced, dealing with the more contemporary, maybe social issues that we people are really suffering every day. So although my capacity doesn't allow me to deeply understand this beautiful book, but मैंने कुछ शेरों को पढ़ लिया, वो जैसे महामारी चपटा का वक्त चलते हैं, कैसे सफ़र करते हैं, तो इस दर्द का भावना को मैंने भी शेयर किया, और at the same time kind of a healing also was there. And I think that interactiveness, or Jamshedji ने जैसे कहा, samvad is the power of the haiku or any form of poems. So I'm feeling very happy to share this very happy moment of dialogue and what. And finally, इस कविता संकलन के बुक लॉन्च के बारे में जमशेदजी साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ. बहुत धन्यवाद. Dhanyavad. Another senior, respected and known name from the print media, Vandita Mishra ji, National Opinion Editor, Indian Express, who is with us today. Her interest is not only confined to political economy, but to literature and fine arts. May I call upon Vandita Mishra ji to say a few words. Very distinguished panel and distinguished gathering. And also to be, part of the launch of such a beautiful book. I first knew Mr. Jamshed as my husband's boss. So my husband is an officer in the Indian Railways, and I would hear him talk about his boss in very odd tones, as a man who set extremely high standards for everyone in office and set an example by following those standards himself. As I read his book of haiku poetry yesterday, I got my second impression of Mr. Jamshed as the poet who plays with words and silences, as the poet who plays with intimacy and incompleteness, the bureaucrat and the poet, or the bureaucrat who is also a poet. I think it is immensely reassuring and heartwarming and offers enormous hope if a bureaucrat can be a poet. I think the world and this country would be a better place if our bureaucrats could also be poets. These are not just poems, of course, these are haiku. Mr. Jamshed is not just cutting through the red tape, he's also cutting down on the words. The art of expressing much and suggesting more in the fewest possible words. The ability to leave a silence at the end of every poem, a silence that invites the reader in. There are so many of these short poems that seem to hold out that invitation to me, that will stay with me, both in their words and in their silences. But before I come to those poems, I've selected some 5 of them. There's one other thing that I might want to say here. So I write editorials as my living, as my work in the Indian Express, I write editorials. The unsigned editorial, every day, 3 appear in the paper. There are 3 paragraphs, about 450 words. So they are nowhere near haiku, and I'm far from being a poet. And I'm not comparing myself to, what Mr. Jamshed and haiku writers do. But what I'm saying is that I do have a sense of how difficult it is to say more in fewer words, to use the space that you have, to decide what is to be left unsaid and what should be said, to filter out the noise and to protect not just the words, but also the silence.
I will end by reading a few of my favorites, just 5 I took from the collection. And please forgive me if I don't read them out in the way that it should be read. So there is one on the world that I come from, the world of journalism and media. झूठ खबरें बन गई सच ना जाने कब. So I think it's cynical, but maybe deservedly so. There is one on loneliness. It says, भीड़ के बीच एक तन्हा चीख दब ही गई. There is another on politics as it is today. सबका हक, भागीदारी, विकास, बहस बिना. There's one on COVID. अलग से थे, मरीज बने जब एक हो गए. And I'll end with one on us and the new technologies. बात समझो, अब नहीं मिलना, deleted हो. आसानी से पेश करना आसान होता है, मगर अगर इजी चीज़ को समझना हो तो उसे पेश करने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं. Power of poetry is immense. It broadens us, it deepens us, it softens us, it humbles and humanizes us in a manner no sculpture or shrine ever can. Great poetry is one when heart opens and we forget ourselves and the world pours in. Therefore, person responsible for steering the literary activities. Ladies and gentlemen, please welcome K. Srinivas Rao. Mr. Koji Sato, Director General Japan Foundation, Madam Manjula Dasji, Chairman CAT, Ms. Vandita Mishraji, National Opinion Editor, Indian Express, Ms. Amna Prasad ji, author and founder of Jashne Bahar, Janab Mohammad Jamshed ji, the author of the book, and also in Hindi we can say Aaj Ka Utsav Murti, Sri Ram Gopal Sharma ji, the publisher of the book. Ladies and gentlemen, friends, poetry has always been part and parcel of all civilizations. The reason for that is poetry represents collective aspiration of humanity to go beyond the given and then to express the experience. Poetry enables people share their feelings, emotions and thoughts in a beautiful and appealing manner. Poetry is easily relatable to the common person, and it has got the ability to express in ordinary words the highest of philosophies and loftiest of thoughts. That is why poetry has always been and will always be part of human societies. At the individual level, poetry ornaments thoughts and expressions, and without poetry, human lives in communities or in primitive state will be barren. Various forms of poetry, long poems, epics, short poems, etc., have been around for a long time in all the nations. In India too, we have had variations of several types. When it comes to short poetry, India have had a long tradition of Sutra literature in Sanskrit, Kural in Tamil, and later Doha added more glitter to this genre. Sutra, Kural, Doha, and Haiku are not merely about size. For convenience's sake, we are referring to them as short expressions. But they are much more than a limited structure and often express grand thoughts and sharpest observations. Haiku, like similar forms, might have started as hokku at the beginning of Renga, as briefly introduced in the beginning also. When one observes the history and evolution of Indian counterparts, they too underwent similar growth and development. So, haiku is a small poem, but at once haikus are gen koans as well as romantic poetry, philosophical sutra,
as well as thoughts on mundane event or message for the society like choral and also music in few words. In this book, Jamshedji has carried with much ease all the elements and characteristics of haiku, something many poets in Indian languages who attempt to write haiku struggle often. The range and depth of the issues he has handled in the book is breathtaking, and the philosophical import of each haiku is amazing. Also, he has taken care to ensure that Kireji is carried in most of the haikus in the book to make it even more appealing. For example, in the page number 15 of this book, 9 words in 3 lines. Santosh rakh ye samay bhi beete jaise wo beeta. At once, the haikus in the book are beautiful poems expressed in fewest words possible, philosophies descending from the yore and riddles challenging Jan koans. For example, in the section Balam Kalkata, the very first poem reads, Fir Wapas, Khali Hathon Kshitij, Pravasi Din. Or, this one after few pages in the section Koi to hai jo, Fir se dhunde tumhe ya khud ko, Sach ya Khuda. The weight of each haiku in this collection sits on the reader, compels one to think about the very nature of life itself, not merely about the particular life one is leading. Beyond the mellifluous and appealing poetry, it is this aspect that is the highlight of this work and makes a successful one. It is not that easy to make people think. I am not referring to the current generation alone, and this problem has been going on from the times of Socrates, and that too with few lines of poetry. That is what Jamshedji has achieved with this collection of haikus. My best wishes to him, and my request to Jamshedji is that he should continue to write more poetry books and enthrall us more and more. Friends, more than any other achievement, this book appealing to persons like me who are not necessarily a poetry lovers. These are some of my thoughts, and I thank Jamshedji for giving me this opportunity. Also, I congratulate the publisher for bringing such a beautiful haiku book. Thank you all. Being a poet is a gift because he embraces us with all our cracks and sins. He walks with us in our grief and sings to us in our joy. He restores and realizes. So before we conclude, I would like to call upon Chairman CAT Manjula Dasji. My brother Muhammad Jamshed, as well as a sister, as well as as a in the dais. Thank you very much. Namaskar. और कुछ खास लोग आए हैं इस महफिल में जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। जी हाँ, हाइकू के माध्यम से जो हमने एक बॉन्डिंग क्रिएट की है और ये हमारी मानस पटल पर अंकित रहेगी। इसी मंगल कामनाओं के साथ मैं बुलाना चाहूँगी राम गोपाल शर्मा जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति में नहीं वरन विश्व की संस्कृति में धन्यवाद का एक अहम रूप है। मंच पर विराजमान मैडम अंकिता मिश्रा जी, संपादक नेशनल ओपिनियन इंडियन एक्सप्रेस, और सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव, साहित्य अकादमी, कामना प्रसाद जी जो जानी मानी लेखिका हैं, और आदरणीय श्री koji साटो जी, महानिदेशक जापान फाउंडेशन, और आदरणीय केएन श्रीवास्तव जी अभी थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस कार्यक्रम में आए, आपने अपने अच्छे विचार प्रस्तुत किए और सामने
जाने माने साहित्यकार, लेखक, कलाकार विराजमान हैं। कवि भी यहाँ हैं, श्री अवधेश जी हैं, सत्यपाल जी हैं, सरबजीत जी हैं और बहुत से, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। और अब उत्तर प्रदेश समाज से आप हैं हमारे, तो मंजुला दास जी चेयरमैन कैट हैं। आप सभी यहाँ पर आए और अपने विचार रखे, पुस्तक के बारे में अपने अच्छे जो आपने जो भी पढ़ा, सोचा, समझा। और आदरणीय जमशेद जी की जो ये हाइकू है, ये कवि बिहारी से मतलब यहाँ पर समकालीन मतलब उस तरह की मैडम ने भी बोला, तो उनका भी मैं एक छोटा सा एक दोहा मुझे याद है। बिहारी ने लिखा, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत है नैनन ही शोभा। मतलब अभी एक शब्द का अर्थ है। ऐसा ही 17 अक्षरों का आदरणीय जमशेद जी ने एक छोटी कविता लिखी है। ये बिल्कुल बिहारी कवि से मिलान करती है। और बिहारी के और भी बहुत से दोहे हैं। नहीं पराग्नि मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही शोभिजो आगे को नवाल। ऐसी अनेक कविताएं हैं। दोहा जिसे कहते हैं, दोहा में भी बंदिश होती है, छंदबद्ध होती है ये सब, लेकिन ये छंदबद्ध रचनाओं से भी और ज़्यादा जटिल है, क्योंकि इसमें 17 अक्षरों का आदरणीय जमशेद जी ने जो समावेश किया है, ये बहुत ही मेहनत का काम है, दिमाग का काम है। हर सामान्य आदमी, हर सामान्य मतलब एक विशिष्ट कवि भी ऐसा नहीं कर सकता जो आदरणीय जमशेद जी ने किया है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप पधारे। और ये पुस्तक मेरे द्वारा मतलब आलोक पर्व प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। आपको बाहर पुस्तक उपलब्ध है। आदरणीय जमशेद जी से हस्ताक्षर से करा सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। और जलपान के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगी ग्रुप फोटोग्राफ के लिए और उसके बाद